हेलो एवरीवन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑल इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ एब्डोमेन। एब्डोमेन के ऐसे कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपको आने ही चाहिए। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है स्कोलियोसिस। स्कोलियोसिस इज अ साइडवे कर्वेचर ऑफ स्पाइन। स्पाइन का जो साइडवे कर्वेचर है उसको स्कोलियोसिस बोलते हैं। दैट अकर्स मोस्ट ऑफन ड्यूरिंग ग्रोथ स्पर्ट जस्ट बिफोर प्यूबर्टी। स्पर्ट यानी कि सडन, अगर सडन ग्रोथ होने लग जाए प्यूबर्टी से पहले तो स्कोलियोसिस होने के चांसेस रहते हैं। kyphosis, एक्सेसिव आउटवर्ड कर्वेचर ऑफ द स्पाइन। अगर स्पाइन का आउटवर्ड कर्वेचर हो जाए तो इसको kyphosis बोलते हैं। कॉजिंग हंचिंग ऑफ द बैक। हंचिंग माने कि टू लीड फॉरवर्ड। लंबार लोडोसिस, ए कर्विंग इनवर्ड ऑफ द लोअर बैक। लोअर बैक का अगर इनवर्ड कर्विंग हो जाए तो उसको लंबार लोडोसिस बोलते हैं। स्कोलियोसिस इज साइडवे कर्वेचर ऑफ स्पाइन। kyphosis is outward curvature of spine and lordosis is inward curvature of spine. Anterior abdominal wall consists of a 9-quadrant which is formed by right and left lateral plane, transpyloric plane and transtubercle plane. The first quadrant is right hypochondrium, second is epigastrium, third is left hypochondrium, fourth is right lumbar region, fifth is umbilical region, sixth is left lumbar region, seventh is right iliac fossa, eighth is hypogastrium and ninth is left iliac fossa. To get the information about the muscles of the anterior abdominal wall, please check out this video. Difference between male and female pelvis. This is the most important question. In female pelvis, the bones are lighter and thinner. जो female pelvis के जो bones होंगे वो light होंगे और thin होंगे. Bones of the male pelvis are heavier and thick. मेल पेल्विस के जो बोन होंगे वो हैवी होंगे और थिक होंगे. फॉल्स पेल्विस इन फीमेल इज शैलो. फॉल्स पेल्विस इन मेल इज डीप. नाउ वी विल सी व्हाट इज द फॉल्स पेल्विस. द आउटर बॉर्डर ऑफ द पेल्विस इज कॉल्ड एज फॉल्स और ग्रेटर पेल्विस, whereas the inner border of the pelvis is called as lesser or true pelvis. In female, pelvic cavity is wide and shallow, whereas in male, pelvic cavity is narrow and deep. In female, pelvic inlet is round, whereas in male pelvic inlet is heart shape. Pelvic outlet is comparatively larger in female, whereas pelvic outlet is comparatively smaller in male. Subpubic angle is larger in female, whereas subpubic angle is more acute in male. In male pelvis, pubic angle is about 60 to 70 degree, whereas in female pelvis, pubic angle is about 80 to 90 degree. Coccyx is more flexible and straighter, whereas in male, coccyx is less flexible and more curved. Now we will see what is the rectus sheath. Rectus sheath is an aponeurotic sheath covering the rectus abdominis. It has two walls, anterior and posterior. Anterior wall is complete, covering the muscle from end to end. Posterior wall is incomplete. Rectus sheath जो है वो aponeurotic sheath है जो कि रेक्टस एब्डोमिनस मसल को कवर करती है. रेक्टस शीट की जो एंटीरियर वॉल होगी वो कंप्लीट होगी और वो एंड टू एंड पूरे मसल को कवर करेगी. रेक्टस शीट की जो पोस्टीरियर वॉल होगी वो आधी होगी, वो सिर्फ आर्कुएट लाइन तक रेक्टस एब्डोमिनस मसल को कवर करेगी. Now the content of the rectus sheath. Rectus sheath consists of an rectus abdominis muscle and pyramidalis muscle, arteries, superior epigastric artery and inferior epigastric artery, veins, superior and inferior epigastric veins. Nerves, intercostal and subcostal nerves. Functions, it checks bowing of the rectus muscle during its contraction. जब भी rectus abdominis muscle का contraction होगा at that time rectus sheath जो है वो चेक करेगी bowing of the muscle and thus increases the efficiency of the muscle, और मसल की जो एफिशिएंसी है उसको इंक्रीज करेगी. इट मेंटेन द स्ट्रेंथ ऑफ द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल. एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल की जो स्ट्रेंथ है उसको मेंटेन करने का काम रेक्टस शीट करेगी. इंग्वाइनल कैनाल, दिस इज एन oblique intermuscular passage in the lower part of the anterior abdominal wall situated just above the middle half of the inguinal ligament. इंग्वाइनल कैनाल जो है वो इंटरमस्कुलर पैसेज है जो कि एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के लोअर पार्ट में और जस्ट अबाउ द इंग्वाइनल लिगामेंट में सिचुएटेड होता है. लेंथ एंड डायरेक्शन, द लेंथ इज अबाउट 4 सेंटीमीटर एंड डायरेक्शन इज डाउनवर्ड्स, फॉरवर्ड्स एंड मीडियली. Inguinal canal extends from the deep inguinal ring to the superficial inguinal ring. Inguinal canal जो है वो deep inguinal ring से superficial inguinal ring तक extend होगा. This is the inguinal canal जो कि 4 सेंटीमीटर लॉन्ग होगी.
जो कि डीप इंग्वाइनल रिंग से लेकर के सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग तक एक्सटेंड होगी और वो रन करेगी डाउनवर्ड्स, फॉरवर्ड्स एंड मीडियली। मेल जेनाइटल ऑर्गन, द फर्स्ट ऑर्गन इज पेनिस. Penis is made up of two parts, the root and the body. This is the root part and this is the body part. Penis helps in the sexual intercourse and passage of the urine. Scrotum. The scrotum is a cutaneous bag containing the right and left testes. Scrotum protects the testes and helps to maintain the temperature less than the body. Testis. The testis is a male gonad. It is homologous with the ovary in the female. It is suspended in the scrotum. The testes are responsible for making the testosterone hormone, the primary male sex hormone, and for producing sperm. Peritoneum. The peritoneum is a large serous membrane lining in the abdominal cavity. Peritoneum जो है वो एक large serous membrane है जो कि abdominal cavity में lie करता है. The peritoneum is divided into, peritoneum जो है वो 3 पार्ट में divided होता है, an outer or parietal layer, an inner or visceral layer, folds of peritoneum by which the visceral are suspended. जो folds है peritoneum के जिसके अंदर visceral organs जो है वो suspended रहेंगे. Functions of the peritoneum. The first one is the movement of the viscera. The chief function of the peritoneum is to provide a slippery surface for the free movement of the abdominal viscera. Peritoneum जो है वो slippery surface provide करेगा जिसकी वजह से abdominal viscera जो है वो easily move कर पाए. Second function is the protection of the viscera. पेरिटोनियम जो है वो विसरास का प्रोटेक्शन करेगा. अब कैसे करेगा वो देखते हैं. द पेरिटोनियम कंटेन्स वेरियस फेगोसाइटिक सेल. पेरिटोनियम जो है वो बहुत सारे फेगोसाइटिक सेल्स को कंटेन करता है विच गार्ड अगेंस्ट द इन्फेक्शन, जो कि इन्फेक्शन के अगेंस्ट गार्ड करेंगे. हीलिंग पावर एंड एडहेशन. अब इंटरनल ऑर्गन्स में अगर कहीं पे छोटी मोटी चोट लग जाए तो पेरिटोनियम के पास ये पावर रहेगा वो उसको हील कर सके. द मीजोथीलियल सेल्स ऑफ द पेरिटोनियम कैन ट्रांसफॉर्म इनटू फिब्रोब्लास्ट. जो पेरिटोनियम के अंदर के जो मीजोथीलियल सेल है वो अपने आप को ट्रांसफर करेंगे इनटू द फिब्रोब्लास्ट विच प्रमोट द हीलिंग ऑफ द वुंड्स, जो कि हीलिंग को प्रमोट करेंगे. स्टोरेज ऑफ फैट. पेरिटोनियल फोल्ड्स आर कैपेबल ऑफ स्टोरिंग लार्ज अमाउंट्स ऑफ फैट पर्टिकुलरली इन ओबेस पर्सन. जो भी ओबेस पर्सन है उसके अंदर पेरिटोनियल के पास ये कैपेबिलिटी है कि वो लार्ज अमाउंट ऑफ द फैट को स्टोर करके रख पाए. प्रोवाइड पैसेज फॉर नर्व्स, वेसल्स एंड लिम्फेटिक्स टू एंड फ्रॉम द सस्पेंडेड विसरा. पेरिटोनियल फोल्ड के अंदर जो भी विसरा सस्पेंडेड है उसमें नर्व्स, वेसल्स एंड लिम्फेटिक्स को आने जाने के लिए पैसेज प्रोवाइड करेगा. क्लिनिकल एनाटॉमी. कलेक्शन ऑफ द फ्लूइड इन द पेरिटोनियल कैविटी इज नोन एज एसाइटिस. अगर पेरिटोनियल कैविटी में फ्लूइड का कलेक्शन हो जाए तो उसको एसाइटिस बोलते हैं. फ्लूइड फ्रॉम द पेरिटोनियल कैविटी में बी रिमूव्ड. अब ये जो फ्लूइड है जो कि पेरिटोनियल कैविटी के अंदर है उसको रिमूव कैसे कर सकते हैं. बाय पंचरिंग द एब्डोमिनल वॉल आइदर द मीडियन प्लेन मिडवे बिटवीन द एम्बेलिकस एंड प्यूबिक सिम्फाइसिस. एम्बेलिकस एंड प्यूबिक सिम्फाइसिस के बीच में पंचर करके इस फ्लूइड को निकाला जा सकता है. यूरिनरी ब्लैडर मस्ट बी एम्प्टीड बिफोर द प्रोसीजर. ये प्रोसीजर करने से पहले यूरिनरी ब्लैडर जो है वो हमारा एम्प्टी होना चाहिए. इन्फ्लामेशन ऑफ द पेरिटोनियम इज कॉल्ड एज पेरिटोनाइटिस. अगर पेरिटोनियम का इन्फ्लामेशन हो जाए तो उसको पेरिटोनाइटिस बोलते हैं. द प्रेजेंस ऑफ एयर इन द पेरिटोनियल कैविटी इज कॉल्ड एज न्यूमोपेरिटोनियम. अगर पेरिटोनियल कैविटी के अंदर हवा भर जाए तो उसको न्यूमोपेरिटोनियम बोलते हैं. ओपनिंग ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी बाय सर्जरी इज कॉल्ड एज द लैपेरोटोमी. एब्डोमिनल कैविटी को अगर हम ओपन करते हैं सर्जरी के थ्रू तो उसको लैपेरोटोमी बोलते हैं. ग्रेटर ओमेंटम लिमिट्स द स्प्रेड ऑफ द इन्फेक्शन सो इट इज कॉल्ड एज द एब्डोमिनल पुलिसमैन. ग्रेटर ओमेंटम जो है उसको एब्डोमिनल पुलिसमैन बोलते हैं क्योंकि वो इन्फेक्शन को स्प्रेड होने से लिमिट करता है.